سب سے پہلے اپنے زندگی میں جس چیز کو ہم بھولے بیٹھے ہیں نا، وہ ایک لفظ نور اور ایک لفظ روشنی یا نور جو ہے نا، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اور آپ نے روشنی کے بارے میں جیسے قرآن کے اندر بھی جو آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ نور السماوات والارض، پھر اس کے بعد مثال دی گئی ہے کہ مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ نور کے بارے میں، لائٹ کے بارے میں ایک بہت پروفاؤنڈ امیزنگ وہ ہے، آیت ہے، آیت نمبر 35 سورہ نور کی، کہ اللہ تعالیٰ کو سے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کسی شے سے اللہ کی مماثلت نہیں ہے، ایسا شورا کی آیت ہے نا، کسی شے سے بھی اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کی کوئی ہے نہیں جس سے کہ آپ اس کو ملا سکیں۔ لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ لامعنی طور پہ اس نور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لائٹ جو فزیکل لائٹ ہے وہ مطلب نہیں ہے، لیکن بہرحال لفظ نور استعمال کیا گیا ہے جو ہیومن لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، وہی لینگویج کہا گیا ہے کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کے ظاہر سی بات ہے وہ معنی تو ہم نہیں لے سکتے کہ جو فزیکل نور کی بات ہے، لیکن لفظ بہرحال نور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ نور ہے، اس نور کے اندر واقعی بہت ساری یونیک کوالٹیز، یونیک پراپرٹیز ہیں جو کہ بہت ہی یونیک ہیں، کہ جس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نور ایکچولی ہے کیا چیز؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ نور کا لفظ استعمال ہوا، قرآن کو نور کہا گیا ہے، سسٹم کو نور کہا گیا ہے، بہت جگہ علم کو نور کہا گیا ہے، بہت جگہ لفظ نور 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 استعمال ہوتا ہے۔ آخر کیوں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ نور اتنی جگہ؟ انسان کے بہترین یا انسان کے حقیقت جاننے کے جو معاملات ہیں اس سب کے لیے نور استعمال ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان، یہ چاند اور یہ ستارے، تمام چیزیں، ان کے لیے بھی نور استعمال ہوتا ہے۔ ان کے نور کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے زندہ ہیں، یہ ہیں تمام چیزیں۔ تو آخر یہ نور ایکچولی ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو نور ہے نا، یہ میں سائنس کے اوپر آؤں گا۔ یہ جو لائٹ ہے، یہ دراصل ایک قسم کی ریڈیشن ہے۔ ریڈیشن کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی انرجی ہے جو کہ ٹریول کرتی ہے، خود بخود موو کر سکتی ہے، اور یہ اس کے اندر ایک قسم کی نا ویوز ہوتے ہیں کی شکل بھی اختیار ہوتی ہے، اور پارٹیکل کی شکل اختیار ہوتی ہے، میں اس کو سمپل بنا کے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ انرجی ہوتی ہے جو کہ ٹریول کرتی ہے ریڈیشن کوئی 1,86,000 میل کی رفتار سے۔ اور عام طور پر جس ریڈیشن ہے، اس ریڈیشن کا جو ویو ہے، اس کو وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایسوشیٹ کرتے ہیں ویو کی شکل میں۔ تو ویو کی شکل میں کیا ہوتا ہے، مثال اور کہ تھوڑا سا معاف کیجیے گا مجھے، میں تھوڑا سا مشکل تو ہوگا لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پانی کا جو ویو ہے نا، وہ میکینیکل ویو کہلاتا ہے نا۔ تو اس ویو کے اندر ایک چیز ضرور پائی جاتی ہے کہ ویو کا جو پانی کے اپنے پارٹیکل ہیں، وہ اوپر یہ نیچے، اوپر نیچے، اوپر نیچے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اس کے اندر پانی کے اندر ہی لہر بنی تو پانی موو کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ ڈور کو ہلاتے ہیں تو اس میں ویو بن جاتا ہے تو ڈور ہی موو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لائٹ بھی جو ہے نا، وہ اگر ویو ہے، ریڈیشن ایک ویو ہے، تو اس میں کیا چیز حرکت کر رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو حرکت کرتی ہے نا۔ تو اس میں جو چیزیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ فیلڈ ہوتی ہیں۔ آپ نے میگنیٹ کے بارے میں سنا ہوگا، میگنیٹ کی فیلڈ ہوتی ہے اور لائٹ کی فیلڈ ہوتی ہے۔ میگنیٹ کی فیلڈ ہوتی ہے اور بجلی کی بھی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، تو اس میں بجلی کی فیلڈ پائی جاتی ہے،
اور اس میں لائٹ کے اور اس میں میگنیٹ کی فیلڈ پائی جاتی ہے. تو یہ 2 فیلڈ ہوتی ہیں جو کہ فیلڈ بذات وہ فیلڈ میں حرکت ہوتی ہے، موو کرتی ہیں اور وہ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ کہلاتی ہیں. اور یہ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ جو ہے نا، یہی دراصل ریڈیشن ہے. اور چونکہ یہ لائٹ جو ہے نا، اسی سے تعلق ہے، تو تمام ریڈیشن کو ہم لوگ عام طور پر لائٹ ہی بولتے ہیں. اور یہ اس کا ویو ہے. اس کے جو پارٹیکل فارم ہے نا، اس کو ہم فوٹونز کہتے ہیں. کہ یہ ایک دیکھنے میں لگتا ہے ویو ہے، لیکن ایکچولی اس کی دوسری شکل میں یہ پارٹیکل میں سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس نہیں ہوتے ہیں، انہیں پارٹیکل کی شکل میں ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہو کہ جو لائٹ جب موو کرتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں موو کرتی ہے. ایک یہ بھی اس کا، کیونکہ اس کا ڈیول نیچر ہوتا ہے، ویو نیچر بھی ہے، پارٹیکل نیچر بھی ہے. پارٹیکل میں موو کر رہی ہوتی ہے، اس پارٹیکل کو جو موو کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم فوٹونز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک میں نے ایک بہت آپ کو میں نے ایک وہ سمپل سے ایک آپ کو پیش کر دیا جو روشنی کی بات ہے. ابھی جو روشنی ہے، اس کی کچھ بات، وہ روشنی کی اس فوٹون کی کچھ باتیں یونیک اس طرح سے ہیں کہ آئنسٹائن نے کچھ تھیوری دی تھی. اور اس تھیوری کو جو ہم اپلائی کرتے ہیں، اس تھیوری کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹیکل، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی میٹر اگر وہ لائٹ کی رفتار سے چلے گا تو اس کا جو والیوم ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، وہ کوئی اسپیس نہیں لے گا. یعنی میری گاڑی ہے اور اس گاڑی کو اگر میں اس کی رفتار سے چلاؤں، روشنی کی رفتار سے چلاؤں، تو یہ گاڑی کا والیوم ہی ختم ہو جائے گا، کوئی اسپیس لے گا ہی نہیں، کوئی اسپیس نہیں لے گا. اس کو ڈائمینشن جو ہے نا، جس ڈائمینشن پہ موو کر رہا ہے وہ ڈائمینشن زیرو ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے والیوم کے لیے 3 ڈائمینشن چاہیے ہوتی ہے، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی. تو ان میں سے ایک بھی ڈائمینشن ختم ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کے لیے ٹائم بھی رک جاتی ہے. اب وہ ٹائم نہیں اس کے لیے موو کر رہا ہوتا ہے اگر لائٹ سے موو کریں. ابھی کیوں اور کیسے ہوتا ہے یہ سمجھانے بیٹھوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، بس میں آپ کو ایک بلٹ پوائنٹ دے رہا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم بھی نا رک چکا ہوتا ہے. جب اسپیس میں کوئی پارٹیکل اگر لائٹ کے اسپیس سے موو کرتی ہے تو ٹائم رک چلتا ہے. اسی طریقے اس کی ایک اور تھیوری بھی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لائٹ کی اسپیڈ سے جاتی ہے تو اس کا ماس جو ہے نا بے انتہا ہوتا ہے، انفائنائٹ ماس ہو جاتا ہے اس کا. انفائنائٹ ماس ہوتا ہے کہ بے انتہا اس کے اندر ڈینسٹی بہت زیادہ ہوگی، اس کی ہوتی ہے، ماس بہت ہو جاتا ہے. اب لائٹ کے پارٹیکل کو آپ لیں تو لائٹ کے پارٹیکل جو فوٹون سے یہ چونکہ موو کرتا ہے لائٹ ہی کی اسپیڈ سے، لائٹ کی اسپیڈ سے موو کرتا ہے، اس لیے اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اسپیس نہیں لیتا. کتنی غور کرنے کی بات ہے. فوٹونز کوئی اسپیس نہیں لیتا. فوٹونز ایک وقت میں کئی جگہ ہو سکتا ہے. اور فوٹون کا ماس، چونکہ اگر اس میں ماس ہوتا کوئی اوریجنلی تو پھر اس کا ماس چلنے انفائنائٹ ماس ہو جاتا، لیکن ویسا ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماس جو ہے نا وہ زیرو ہے، ریسٹ ماس زیرو ہے. تو یہ کس قسم کا پارٹیکل ہے جو اس فزیکل ورلڈ میں چلتا ہے؟ اگر دیکھیں آپ لوگوں کو نا ہاتھ اٹھا دیجیے گا، آپ لوگوں کو بور لگ رہا ہے نا، وہ لگ رہا ہے تو وہ کر دیجیے گا. کیونکہ میں بہت دفعہ سوچا تھا کہ آپ لوگ کسی ڈیپر اس میں لے کے جاؤں اور وہاں سے میں چیزوں کو خریدوں اور پھر اس کو میں جوڑ کے دکھاؤں. لیکن بعض دفعہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ملتا نا، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے تھمس ڈاؤن کر دیجیے گا، تو میں پھر اس کو سمپل اور آسان کر دوں گا اور پھر میں اس کو بجائے اتنے ڈیٹیل میں جاننے کے کہیں اور سے جوڑ دوں گا. تو آپ تھمس ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر کوئی پرابلم کچھ ایسا لگے تو میں اپنا آپ کو سیٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس اسپیس میں جو بھی کائنات میں جو بھی چیزوں کا وجود ہے، اس وجود کی کو بیان کیا جاتا ہے 4 چیزوں سے. اولن وہ کوئی جگہ لے گی، وہ اس کا کسی ٹائم ہوگا، اور تیسرا اس کا کوئی ماس ہوگا، اور چوتھا اس کی چیز پولیرٹی، جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو. یہ چیزیں جو ہے وہ اس دنیا میں ایگزسٹنس کے لیے لازمی ہے. اب ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے تو اس چیز کا فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. فوٹونز کے اندر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے. لائٹ کے اندر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے. نہ اس کے اندر ماس ہے، نہ وہ نیگیٹو ہے، نہ پازیٹیو ہے، اس کا کوئی پولارٹی نہیں ہے، اس کو کوئی اپوزٹ نہیں ہے. یوں آپ سمجھ لیں، اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے لائٹ کا. مائی گاڈ.
और ये लाइट के अंदर ऑपोजिट में से कोई नहीं है, इसने ये कोई जगह नहीं घेरती है, यानी स्पेस नहीं लेती कोई भी, ठीक है ना? वॉल्यूम 0 है। ये टाइम के अंदर, इसलिए टाइम रुका हुआ है, ये टाइम के अंदर या एक कई जगह पाई जा सकती है पार्टिकल, और ये इसकी बड़ी यूनिक नेचर है। इस लाइट की ये बड़ी यूनिक नेचर है, फोटॉन्स की। और उसके बाद फोटॉन्स के और एक नेचर में देखिए, क्योंकि ये इसके ये लाइट जो है, ये सब नहीं है इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन जो प्रॉपर्टीज के अंदर है वो बड़ी अमेजिंग है। वो बड़ी अमेजिंग है, वो किसी भी कायनात में किसी चीज में नहीं पाई जाती। वो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव नहीं। कायनात की जितनी भी चीजें हैं वो रिलेटिव हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी गाड़ी की रफ्तार को देखिएगा तो वो रिलेटिव है। आपको वो 60 के हिसाब से चलती हुई नजर आ रही है। कोई बंदा अगर अपने साइकिल उस गाड़ी के साथ चला रहा है 20 के हिसाब से, तो उसको लगेगा कि गाड़ी 40 से चल रही है, ठीक है ना? कोई अगर उस गाड़ी के साथ साथ चल रहा है तो उसको लगेगा कि उसकी वो दूसरी वाली गाड़ी जो है ना, ये दोनों गाड़ी रुके हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खुद गाड़ी की स्पीड, अब आप कहिएगा जमीन के साथ मुकाबले लें, तो अब जमीन पे जो खड़ा हुआ बंदा है उसको लग रहा है कि ये गाड़ी इतने से जा रही है, लेकिन जो चांद से खड़ा होकर जमीन को देख रहा होगा और गाड़ी को देख रहा होगा, उसके लिए कुछ और वैल्यू होगी। तो कायनात में हर चीज मूव करी, इसलिए कायनात के अंदर कोई भी आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम कर सकते कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। आप अगर किसी की वैल्यू बताएंगे तो आप कहेंगे विद रेफरेंस टू अर्थ, लेकिन वो विद रेफरेंस टू मार्स अलग हो जाएगा। समझा आपने? तो ये चीजें, ये बातें जो है ना, ये रिलेटिव, और ये रिलेटिव मतलब तमाम बातों के अंदर है। ये सब इंसान के परसेप्शन का ताल्लुक है। इंसान पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जब रिलेटिव हम कहते हैं किसी बात को, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। एक की लल वलू आ सकती है। लेकिन लाइट के बारे में, पहले आइंस्टाइन के बारे में ये नहीं था, सॉरी न्यूटन के बारे में, लेकिन आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन, हम लोग ये समझते थे कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है, वो नहीं बदलता। चाहे आप यहां रहें, चाहे वहां रहें, चाहे कहीं भी रहें, टाइम टाइम है भाई, वो नहीं चेंज होता। और जो स्पेस हमारे गिर्द, वो नहीं चेंज होता। मिसाल मिसाल ये है कि एक कमरा है 10 बाई 10 का, तो 10 बाई 10 का ही रहेगा। वो खुद ब खुद खींच के एक दिन बैठ बैठ एक दिन 11 हो गया, एक दिन 9 हो गया, ऐसा नहीं होता। मैं सिंपल बता रहा हूँ, यानी स्पेस नहीं छोटा बड़ा होता। एक फुट की लकड़ी है हमारे पास, तो हर वक्त एक ही फुट की रहेगी, वो 1 से 1.5 फुट नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये है वो चीज जो समझी जाती थी। आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर 1 फीट की लकड़ी, अगर एक एक बंदा अगर देख रहा है खड़ा होकर के, और एक बंदा उसके साथ मूव कर रहा है, दोनों उसको अलग अलग मेजर करेंगे। कोई छोटा मेजर करेगा, कोई बड़ा मेजर करेगा। सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि एक मूविंग पर्सन है और एक स्टेशनरी पर्सन है, रिलेटिव टू वो क्या कहते हैं वो चीज। तो उसकी वजह से जो साइज है लकड़ी का, वो साइज, 1 फुट का साइज, किसी के लिए कोई नंबर, किसी के लिए कोई नंबर आ जाएगा। ये आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बहुत जबरदस्त। इसी तरीके से घड़ी है। अगर आप घड़ी में टाइम देख रहे हैं, एक बंदा खड़ा है और एक बंदा जा रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग है फ्रेम में, और एक स्टेशनरी फ्रेम में। ये दोनों जब वो देखेंगे किसी भी इवेंट का ना, घड़ी देखेंगे, तो घड़ी जो है ना वो स्लो हो जाएगी, एक के लिए स्लो हो जाएगी। एक वो टाइम, वो एक ही आदमी सिगरेट पी रहा है, एक मेजर करेगा 5 मिनट, एक मेजर करेगा 10 मिनट, एक ही इवेंट को। और वो इवेंट सिर्फ इसलिए चेंज हो जाएगा कि एक मूव कर रहा है, एक मूव नहीं कर रहा, और कोई बात नहीं है। एक मूविंग फ्रेम है, एक स्टेशनरी फ्रेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हैं इसमें, ये सब ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। इवन टाइम भी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, उसके स्टेट के ऊपर। स्पेस भी स्टेट पर डिपेंड कर रहा होता है। पूरे स्पेस सिकुड़ जाती है और फैल जाती है, बढ़ जाती है, उन पर डिपेंड कर रहा होता है। ये बड़ी इसने पूरी चीजों को, इसको आप समझ लीजिए, इसने पूरी चीजों को हिला के रख दिया है, वर्ल्ड व्यू को हिला के रख दिया है।
इस चीज ने पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड व्यू को हिला कर रख दिया आइंस्टाइन की इस थ्योरी ने। लेकिन अब लाइट पे आइए। इससे पहले ये समझा जाता था कि लाइट जो है ना वो स्लो और तेज होती है, स्पीड न्यूटन का। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, लाइट की स्पीड कभी नहीं चेंज होती, वो एब्सोल्यूट रहती है, वो किसी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करती है। एक बंदा मूव कर रहा है, एक बंदा खड़ा है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों के लिए की रहेगी। इस चीज को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। बाकी जो दूसरी वैल्यू थी वो रिलेटिव वैल्यूज थी। आपने देखा, पहले वक्त को समझा जाता था कि वक्त ना छोटा हो सकता ना बड़ा हो सकता है, वक्त एक ही है, हमेशा से और रहेगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं जनाब, वक्त छोटा होता है, वक्त बड़ा होता है, वक्त का ताल्लुक ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, स्पेस का ताल्लुक ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अगर एब्सोल्यूट कोई चीज है तो सिर्फ लाइट है। लाइट का कोई ताल्लुक इंसान के ऑब्जर्वर के इससे चेंज नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एक एब्सोल्यूट नंबर है, नहीं चेंज होता। यहां तक बात हुई। और मैं बताता हूं आपको रोशनी के बारे में। तो क्या क्या नोट किया आपने रोशनी के बारे में? ना कोई स्पेस लेता है, ना कोई उसका किसी टाइम में रहता है, वो टाइम से आजाद है, स्पेस से आजाद है। वो क्या कहते हैं, उसका कोई मास नहीं होता, जिस्म नहीं होता, और उसका कोई ऑपोजिट नहीं होता, पोलैरिटी से कहते। और स्पेस में क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता ना स्पेस के अंदर, जिसको हम लंबाई चौड़ाई और मोटाई में करते हैं, एक डायमेंशन होता है ना, वॉल्यूम कहते हैं, किस्म का डायमेंशन है ना। तो स्पेस एक डायमेंशन से बना है जिसके 3 डायमेंशन हैं, ठीक है ना। आ, कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके 3 डायमेंशन हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 डायमेंशन हैं। अच्छा, इसी तरीके से आइंस्टाइन ने बहरहाल टाइम को भी डायमेंशन का है, लेकिन उसमें अभी मैं नहीं आता, ठीक है ना, उसमें बाद में आऊंगा। ये 3 उसके डायमेंशन हैं। तो ये जो लाइट होता है, लाइट के अंदर वेवलेंथ है। वेवलेंथ के अंदर मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक डायमेंशन मौजूद है। डायमेंशन, लेंथ वाली डायमेंशन, स्पेस की डायमेंशन उसके अंदर मौजूद है, लेंथ। जब वो उसकी शक्ल में, वेव की शक्ल में, डायमेंशन मौजूद, लेंथ मौजूद है उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये वेव है तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम का ताल्लुक जो है ना, वो दरअसल क्या होता है, किसी चीज के नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कितने वाइब्रेशन एक यूनिट टाइम में हुआ है। तो इन्हें टाइम का जो इम्प्लीकेशन है, या टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, या टाइम का जो फीलिंग है, या टाइम का जो इफेक्ट है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है, फोटोन्स के अंदर। तो फोटोन्स के अंदर बुनियादी तौर पर ये टाइम और ये भी डायमेंशन ही पाया जाता है। और स्पेस के अंदर जो है ना, आपको पता है कि स्पेस टाइम इसकी बुनियाद है। ये जो हम जिस कायनात में रहते हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है, वो स्पेस और टाइम से पहचानी जाती है। इस कायनात के अंदर जो मुझे पहचान है चीजों की, वो स्पेस टाइम कैसे पहचानते हैं? हम कहते हैं जो स्टेप स्पेस टाइम में नहीं है, वो इस कायनात में नहीं है, खत्म हो गई बात। तो जो हम पहचाने जाते हैं वो स्पेस टाइम से पहचाने जाते हैं। ये सब चीजें स्पेस टाइम है। लेकिन स्पेस टाइम की जो बुनियाद है, वो फोटोन्स में पाई जाती है, ठीक है ना। उसके अंदर टाइम भी पाया जाता है, उसके अंदर वो भी पाई जाती है, क्या कहते हैं, डायमेंशन भी पाई जाती है। अच्छा, इसको भी आप एक तरफ रखिए, जितनी चीजों को नोट किसके ऊपर, उसके बाद आइए आप फोटोन्स के ऊपर, रोशनी के ऊपर। एक और बड़ी अहम बात है, हमारी जितनी कम्युनिकेशन होती है, हमारी दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन, वो सब लाइट के फॉर्म में होती है। एट द एंड ऑफ द डे वो लाइट की शक्ल अख्तियार कर लेता है, लाइट ही मूव करती है। यहां से वहां तक इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो लाइट के फॉर्म में जाती है। हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लाइट के फॉर्म में जाती है। ये रेडियो स्टेशन में गाना हो बज रहा है, वो गाना रेडियो वेव्स निकलते हैं। रेडियो वेव दरअसल लाइट ही है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो उसको दूसरे लफ्जों में हम लोग रोशनी बोलते हैं। रोशनी से वही नहीं होती जो हमें नजर आती है, पूरा स्पेक्ट्रम है रेडियो आपके रेडिएशन का। तो मैं क्योंकि रेडिएशन बोल लूं तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा, तो मैं फोटोन्स का है, लेकिन पूरा रेडिएशन है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो जब रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसका पार्टिकल फॉर्म को फोटोन बोलते हैं। वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, अदरवाइज फोटोन बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक 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 बंदा कोई गाना गा रहा है, उस गाने की आवाज है, माइक्रोफोन में जाता है, माइक्रोफोन से जाके हो हाँ करके वो रेडियो रेडियो पाकिस्तान के एंटीना पे जाता है, वहां से एंटीना से वो वेव निकलता है, दूसरे लफ्ज में फोटोन निकलता है।
وہ فوٹون वहां से निकलता है, निकलने के बाद वो फोटोन हमारे हमारे रिसीवर में रेडियो के अंदर घुसता है, रेडियो फोटोन्स को पकड़ता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, करने के बाद वो रेडियो जो है वो स्पीकर पे आता है, अब जैसे हमारे सेल फोन पे है, वो स्पीकर पे आता है, स्पीकर में आने के बाद जब मैग्नेट लगा होता है तो वहां पे उसका जो पर्दा है वो हिलता हिलता है, स्पीकर का अंदर जो पर्दा है उसको वफर जो है वो हिलता है, जब वो हिलता है तो हवा में इर्तियाश पैदा होती है, हवा में जो इर्तियाश पैदा होती है तो वहां से हम कहते हैं आमतौर पर को मैकेनिकल वेव है, वो भी मैकेनिकल वेव तो है, नजर तो आता है मैकेनिकल वेव, लेकिन एनर्जी उसकी फिर भी फोटोन की शक्ल में होती है। इसको मैं इंशाल्लाह कभी आपको बताऊंगा। पार्टिकल से पार्टिकल टकराते हैं तो वाइब्रेशन होता है, लेकिन पार्टिकल जब भी टकराते हैं तो उसको वो एनर्जी फोटोन्स में ही देते हैं, लेकिन होता है वो मैकेनिकल वेव। बहरहाल फिर वो आते-आते कान से आता है, कान से आते तो होते-होते दिमाग वांग में आ जाता है हमारा फोटोन। तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना फोटोन की शक्ल में होती है। मैं इंशाल्लाह तो इस पे पूरी बात करूँगा जब मैं बात करूँगा वो माशरे की बात करूँगा। जब मैं बात करूँगा कि कलेक्टिव कॉन्शसनेस कैसे पैदा होता है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा मेरे मुँह से सुना होगा कलेक्टिव कॉन्शसनेस, सुना होगा। फिर आप लोगों ने बहुत दफ़ा मेरे मुँह से सुना होगा कि ये एक सम टोटल हुआ करता है ना। फिर आपसे मैंने को कहा था कि माशरा कैसे फर्द के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही थी ना और इसको इंशाल्लाह ताला मैं फोटोन के ज़रिए ही समझाऊँगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर फोटोन को आप समझ जाएँगे तो आपको आपको सब समझ आएगा कि हम अच्छे क्यों नहीं होते, हम बुरे क्यों रहते हैं। तो आगे चलता हूँ मैं, तो अब आपने देखा कि ये सारी चीज़ें हैं कि इन्फॉर्मेशन भी लेके आता है, सब कुछ आता है। अच्छा आप मज़े की अब आखिरी मज़े की बात बताता हूँ मैं इसकी। आखिरी मज़े की बात है तो आप आपने इसमें स्पेस में देखा इसके अंदर, टाइम भी है इसके अंदर और डायमेंशन भी इसके अंदर। आखिरी मज़े की बात ये है कि इस फोटोन्स को अगर आप स्टॉप कर दें, तो ये अपने आप को पार्टिकल में बना देता है। यानी वो मैटर की शक्ल इख्तियार करता है। ये अजीब बंदा है, अजीब चीज़ है। ये वो इस फिज़िकल वर्ल्ड से नहीं है। उसके अंदर फिज़िकल वर्ल्ड की कोई क्वालिटी, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। लेकिन इसके अंदर मैटर बनाने की सलाहियत है, स्पेस और टाइम बनाने की सलाहियत है और इन्फॉर्मेशन लाने ले जाने की सलाहियत है। और ये किसी बंदे के, किसी के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता। माय गॉड! आप सोच सकते हैं कि फोटोन क्या चीज़ है ये? इस फोटोन का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। इस रोशनी का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। ये रोशनी इस दुनिया में अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। हमको हमको उसके आसार नज़र आते हैं, लेकिन वो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती। ये। अब ये रोशनी जो है ना, इसने ये ये है क्या चीज़? ये क्या करती है? तो फिर मैंने आपको एक प्रोग्राम आप लोगों को मैंने बताया था, दिखाया था आप लोगों को एक प्रोग्राम मैंने, स्पेस टाइम का कोन बना के आपको दिखाया था कि जब स्पेस टाइम बना, तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक पॉइंट से और वो पॉइंट अच्छा, वो पॉइंट का समझिए कि नो डायमेंशन पॉइंट है। उसको कोई डायमेंशन ही नहीं है। इतना छोटा पॉइंट है और उसे स्पेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां से बेइंतहा रेडिएशन निकल रहा। तो आप कहेंगे कैसे निकल रहा है वहां से बेइंतहा रेडिएशन जब डायमेंशन नहीं है? तो अभी हमने कुछ देर पहले हमने बताया ना आपसे कि जब फोटॉन्स होता है उसको कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब है कि फोटॉन्स एक ऐसी चीज है कि जो बेइंतहा तादाद में एक नुक्ते के अंदर से निकल सकती है। बेइंतहा तादाद में एक नुक्ते से निकल सकती है वो, और बेइंतहा तादाद में एक नुक्ते से निकली। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरीके से कि अब वो कहते हैं कि जनाब ये इसकी शुरू इब्तिदा कैसे हुई? इसका मतलब ये है कि किसने किसी को कमांड मिला होगा ना, खुद ब खुद क्यों? जब इब्तिदा हुई है तो खुद ब खुद क्यों? इस पे जो टाइम है, स्पेस है हमारा कायनात जिसकी इब्तिदा हुई है। तो हमारी जो टाइम स्पेस है ना, इसकी इब्तिदा हुई है। तो खुद ब खुद कैसे इब्तिदा हुई? कैसे दिल में चाहा कि इब्तिदा हो गई? और एक पॉइंट एक कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से इब्तिदा हुई। तो वो जो इब्तिदा हुई, उसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट कह रहा है जनाब, मैंने नहीं कहा, मैंने बहुत पहले ये बात कहा था। कुछ 2 और प्रिंसिपल हैं, उसको एक को कहा जाता है क्वांटम टनलिंग और एक को कहा जाता है एक है क्वांटम लॉज़। तो आज वो कहता है, वो साइंटिस्ट जिसने एलन गुथ के साथ पूरा वो जो प्रोसेस बताया है कि जो क्या कहते हैं दुनिया में जो जो आपके वो है ना, क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, बिग बैंग ना, तो बिग बैंग के फ्लॉज को निकाल करके उसने दूसरी थ्योरी दी उसने की ना। तो वो कहता है कि असल में जो कायनात शुरू हुई है वो क्वांटम लॉज से शुरू हुई है। उसको मैं बताऊंगा कभी, आप लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी कुछ और बताना चाह रहा हूँ, रोशनी पर फोकस करूंगा, क्वांटम लॉज से।
मैंने उस क्वांटम लॉ का मतलब ये होता है कि ऐसा कानून जो कि बिल्कुल क्या कहते हैं डिजिटल फॉर्म में, या ऐसा कानून जो बिल्कुल डिस्क्रीट हो। एक होता है ना कि लंबे चौड़े कानून, मैंने आपको उसको भी बताया है। एक लंबा चौड़ा हुक्म मैं बना के दिया, डिस्क्रीट हुक्म नहीं है, ठीक है ना? लेकिन एक ऐसा डिस्क्रीट हुक्म कि उससे मुख्तसर हो नहीं सकता, बिल्कुल एक पैकेट में, वो क्वांटम लॉ कहलाता है, वो क्वांटम डिस्क्रीट है। और अमेजिंगली मैंने इसको कनेक्ट किया है लफ्ज कुन से। अमेजिंग कुरान के लफ्ज है कि कुन जो है ना, मुझको एब्सोल्युटली डिस्क्रीट कमांड लगता है, और वो बनता कहता है क्वांटम लॉ से शुरू हुआ है, यानी अमर से, क्वांटम कमांड से शुरू हुआ है। वो क्वांटम कमांड अल्लाह ने दिया कुन, उसको फोटोन्स ने लिया। अब फोटोन्स जो है वो क्या क्या है कि फोटोन्स काम करने की सलाहियत है। मैं रुक नहीं पाऊंगा, अगर मैं इसमें चला गया ना तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अमेजिंग देख बताऊंगा कि आप लोग उसको एनर्जी बोलते हो, क्या बोलते हो, ये सब एब्सोल्युटली न्यू फिनोमेना है। चलिए, अगर बात लंबी है तो मैं थोड़ा सा करके ना सेकंड पार्ट में कर दूंगा, बजाय इसको मैं थोड़ा सा उसको वो कर दूं, क्या कहते हैं, कट शॉर्ट करूं। मेरे ख्याल में उसको मैं सेकंड पार्ट भी रखूंगा, कट शॉर्ट नहीं करूंगा। तो वो कौन जो है ना, रोशनी उसको लेता है। अब रोशनी क्या चीज है, आप उसको रोशनी बोलते हैं, लेकिन चलिए भी रोशनी पकड़ लेता हूं मैं, फिर बाद में समझाऊंगा आपको। अब वो रोशनी क्या, वो फोटोन्स आता है। अब वो फोटोन्स कुन के बाद, फोटोन्स सडनली, कोई स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है। आप बैलून की मिसाल लें, बैलून सुकड़ के छोटा हो गया और बैलून खुल जाएगा, तो ये स्पेस में नहीं है, स्पेस में कौन पॉइंट निकला, स्पेस था ही नहीं। आपके आपने शऊर में लाए कि कुछ भी नहीं था, कोई फिजिकल वर्ड नहीं था, कुछ भी था, मैं नहीं कहूँ कोई फिजिकल वर्ड नहीं था। लेकिन जब कुन कहा, तो फिर सडनली एक पॉइंट से बहुत सारी रोशनी निकलती है, फोटोन्स। और चूंकि जैम पैक्ड होते हैं फोटोन, तो एक दूसरे टकराते भी हैं। अब ये फोटोन जब यहां से निकलता है, तो फिर ना, पे क्या क्या फोटोन्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसके अंदर टाइम पाया जाता है फ्रीक्वेंसी की वजह से, उसके अंदर डायमेंशन पाया जाता है वेवलेंथ की वजह से, और उसको स्लो करने से मास बनता है। लीजिए जनाब, आपकी कायनात बन गई, आपकी कायनात बन गई। अब ये फोटोन जो है ना, फिर वो इन्फ्लेशन होता है, वो होता है तमाम चीजें, और बेइंतहा एनर्जी, और विदन विदन मतलब अमेजिंग स्पीड में ना, पूरा जुम से ना पूरे एक स्पेस बन जाता है, और टाइम बन जाता है, और मास बनने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस फोटोन से, सिर्फ और सिर्फ उस फोटोन से। स्पेस, मास, ये मास बनने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बनने शुरू हो गए, प्रोटॉन्स बनने शुरू हो गए। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जैसे आप इसको, ये अजीब चीज है कि उसको आप रोकते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है, यानी कि ये मास की शक्ल अख्तियार कर लेता है, मैटर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और उसने डायमेंशन, जो पूरा डायमेंशन थे इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी उसके से, वो जो स्पेस फॉर्म करता है, टाइम को स्पेस करता है, पूरा स्पेस टाइम, वो तो सब चीजें ना फोटोन्स के अंदर से निकल के आई। ये साइंस है। रेडिएशन, बेनता रेडिएशन निकलता है, उसके बाद इन्फ्लेशन होता है, फिर वो टाइम और तमाम चीजें वहीं से बढ़, टाइम की बढ़ भी वहीं से होती है, और स्पेस की बढ़ भी वहीं से होती है, और तमाम चीजें, ये सारी बढ़ तमाम चीजों का पूरा टाइम स्पेस बन गया, मैटर बन गया, हर चीज बन गई, फिर वो बढ़ती गई, इवॉल्व होती गई, जो कुछ होते गए। उसको फिर मैंने आपको सूरह फुसिलत की आयत से समझाया था कि उसकी फिर उसको उसको वो किस तरह से वो कॉस्मोस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना? तो ये मैंने आप लोगों को उस वक्त सारी चीजें बताई थी, आप लोगों को कैसे कैसे तमाम चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताने क्या चाह रहा था, रोशनी और हम और इतराफ, ठीक है, मैं इसके सिफाना चाह रहा हूं। अब आपने एक चीज देखा कि ये सारी चीजें बनने में रोशनी का हाथ है, रोशनी की और भी क्वालिटीज बताई। अब ये रोशनी ने के, जो मैंने आपसे कहा कि रोशनी के अंदर तमाम खसूसियात जो है वो नॉन फिजिकल खसूसियात हैं, फिजिकल वर्ल्ड की खसूसियात नहीं है उसके अंदर, जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, नॉन फिजिकल है, मेटाफिजिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फिजिकल एंटिटी ने फिजिकल वर्ल्ड को वजूद दिया है, गैर मादी चीज ने मादे को वजूद दिया है। ये गौर कीजिए आप, इस कायनात का वजूद गैर मादी कायनात से हुआ है, इस कायनात का वजूद नॉन फिजिकल वर्ल्ड से हुआ है। एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड है। जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है उसके लिए हम दूसरा लफ्ज स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कहते हैं। स्पिरिचुअल को बहुत सारे माने होते हैं, लिए जाते हैं, आमतौर पर मतलब नॉन फिजिकल। इसका मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड का वजूद जिस पर हम अपना शान करते हैं, उसकी माँ जो है वो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, उसकी माँ जो है वो आपके वो है, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है।
اور وہ کمانڈ لے کے آیا ہے روشنی، اور روشنی کا کمانڈ، روشنی کمانڈ لے کے آیا، اور اس کمانڈ کی وجہ سے ساری کائنات بنی، اس کو آپ کون کہتے ہو، ساری کائنات بنی ہے۔ اور پھر یہ کمانڈ سارے کائنات میں ایک ایک چیز میں رکھ دی گئی اللہ تعالیٰ کی یہ کمانڈ، اور اس کمانڈ کو فالو کرنا، اوبے کرنا، ہر چیز کے اندر پوشیدہ کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، پوٹینشیل کے طور پر ڈال دیا گیا اس کمانڈ کو فالو کرنا، اور اس کے امر کو، اس کمانڈ کو فالو کرنا، جس پہ کہ ان کی کیا کہتے ہیں تخلیق ہو گئی ہے کہ اب یہ کمانڈ ہے، تم کو اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے خوشی سے چاہے ناراضگی سے، یہ چیز اس چیز کی فطرت بن گئی ہے، اور اس فطرت کو ایسنشیل نیچر کہتے ہیں، اور اس فطرت کی وجہ سے آپ پارٹیکلز کے بیہیویئر دیکھتے ہیں، اور آج یہ کائنات بڑھ چڑھ کے یہاں تک ہو چکا، اور وہ جو امر ڈال دیا گیا ہے وہ ہم سے شروع کیا، اور اسی فوٹون سے سب کے اندر امر ڈال دیا، کمانڈ ڈال دیا، یہی جو فوٹون ہے نا، اس فوٹون کے اندر جو کمانڈ سب کے اندر پڑا ہوا ہے، اس بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عالم امر بھی اللہ کا ہے، عالم خلق بھی اللہ کا ہے۔ تو یہ نہیں کہ خلق اللہ نے کیا اور امر کسی اور کا چل رہا ہے، اور یہ نہیں کہ امر کسی اور کا ہے اور خالق کوئی اور ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے قرآن کی، کہ عالم امر اور عالم خلق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کائنات کے اندر خلق تو تخلیق ہو گیا، وہ بھی جو ہے وہ نان فزیکل ورڈ سے ہوا، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے، ہمیشہ امر چاہیے تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امر کے ساتھ خلق کو پیدا کیا۔ خلق اور امر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب امر کو نکال دیں گے، خلق ختم ہو جائے گی، تخلیق ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس کو آپ سوچے گا غور قرآن کی اس کو، تو امر اور خلق یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیا ہوا، وہی کمانڈ کون لے کے آئے، کن کا کمانڈ لے کے آئے، پھر یہ کمانڈ امر تمام کائنات میں پھیل گیا، اور تمام کائنات کی چیزیں اس امر کو سبمٹ کرتی ہیں بے چون چرا، اور اس کو بے چون چرا سبمٹ کرنے کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ تو کائنات کا وجود اسلام کی وجہ سے ہوا۔ اسلام نہیں ہوگا تو کائنات کا وجود نہیں ہوگا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی کمانڈ پہ امر کو سبمٹ کرتی ہے، یہ ان کا ایسنشیل نیچر ہے۔ اسی ایسنشیل نیچر کو، فطرہ کو مومن کہتے ہیں۔ جیسا اس نے کہا نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے فطرت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا فطرت کیا ہوتا ہے، مومن کا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے توحید کے فطرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس پورے کائنات کا جو ایسنشیل نیچر ہے وہ توحید پہ مبنی ہے، یعنی کہ صرف ایک ہی رب کو سبمٹ کرنا، اور ایک ہی اللہ کی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، یہ سب میری تسبیح بھی کرتے ہیں، یعنی ہر سب اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں، ہر چیز پارٹیکل اللہ کو رب بھی مانتا ہے۔ لیکن ساری کے ساری کمانڈ، ساری کی ساری باتیں، سارے کے سارے علم آیا کیسے اس کو؟ نور کے ذریعہ، لائٹ کے ذریعہ، فوٹون کے ذریعہ۔ فوٹونز جو ہے نا، اس کی انفارمیشن وہ نان فزیکل ورلڈ کو اور فزیکل ورلڈ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ فوٹونز نان فزیکل ورلڈ کو اور فزیکل ورلڈ کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، کیونکہ ساری کی ساری انفارمیشن، ساری کی ساری وہ ادھر سے لے نا، ساری چیزیں اسی کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے ویلیو ایبسولوٹ ہوتی ہے، چینج نہیں ہوتی، ریلیٹو ویلیو نہیں ہوتی آبزرور پہ۔ تو یہ جو فوٹونز ہے، یہ فوٹونز ہی دراصل فزیکل اور نان فزیکل ورلڈ کو کنیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہے وہ نان فزیکل ہے، جو ابھی میں کچھ دیر پہلے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے آپ کو سمجھایا ہے کہ نان فزیکل ہے، اور پھر ہم یہی بتایا کہ انفارمیشن یہی لے کے آتا ہے، اور ہر چیز کیسے فوٹون نے ہر چیز کو ترتیب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آپ نے دیکھا یہ فوٹونز کو۔ اب یہ فوٹونز جو ہے، یہ روشنی جو ہے، یہ لائٹ، اب یہ دیکھا یہ کمیونیکیشن میں صرف یہ نہیں کہ نان فزیکل کا فزیکل سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اب یہ روشنی ہر چیز کے انفارمیشن کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو کہ جتنے کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، جتنا کچھ بنتا ہے، یہ سب کا سب جو ہے نا وہ فوٹونز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایٹم کا جو نیوکلیس ہے نا، وہ کس ریاکشن کے اندر بہت کم استعمال ہوتا ہے، کیمیکل ریاکشن کے اندر بہت کم، اس کا رول بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن آربٹ میں کہہ رہا ہوں آسانی کے لیے، وہ آربٹ نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک پروبیبلٹی وہ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف انرجی کی ہوتی ہے جہاں پایا جاتا ہے، لیکن میں آربٹ کہتا ہوں عام لوگوں کے زمان میں، کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے گرد جو ہے نا الیکٹرونز گھوم رہے ہوتے ہیں، عام لے مین کے لینگویج میں اس میں۔ اب وہ کیس نہیں ہے، پہلے سمجھاتا تھا، اب کیس دوسرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ گھومتے ہیں اس کے گرد الیکٹرون، یہ اپنے اپنے اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس پہ، انرجی اسٹیٹس پہ، ان کے اپنے اپنی انرجی اسٹیٹس ہوتے ہیں الیکٹرون کی۔ جب ایک ایٹم دوسرے ایٹم سے وہ کرتے ریاکشن کرتا ہے، تو آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرونز کا ایکسچینج ہوتا ہے مختلف شکل میں،
جس کو مختلف बॉन्डिंग कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, फिर उसके साथ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, तो एक नई चीज़ बन जाती है पानी। लेकिन इस तमाम चीज़ें जो होती है ना, इसमें एट द एंड ऑफ द डे आप देखिएगा सारे रिएक्शन के अंदर फोटॉन्स निकलता है, या फोटॉन्स बाहर निकलता है, या फोटॉन्स अंदर जब्स होता है। फिर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव पार्टिकल, एक पॉजिटिव पार्टिकल से एक दूसरे को खींचेंगे। इनको कैसे पता लगता है कि हम इसको खींचें उसको, और दो अगर सिमिलर है तो धक्का दें? कैसे पता, कौन बताता है एक दूसरे को कि देखो देखो वहां पे जो पार्टिकल है ना वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव तो उसको धक्का दो, वो ठीक है। उसका सिर्फ फोटो, उसका फोटोन वो है फिल्म, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। वो फोटोन यानी एक दूसरे के दरमियान फोटोन का एक्सचेंज होता है। तो ये कहता है वहां से फोटोन आया है, और वो इसको फोटो, ये दोनों एक दूसरे का पहचान लेते हैं, अच्छा वो दोनों जो है पॉजिटिव है, चलो हम इसको धक्का देते हैं। वो भी फोटोन्स के जरिए होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस हद तक कायनात में सारी चीजें फोटोन्स से होती है, लाइट कैसे होती है। और अभी जो मैंने आपको कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि मैं ख्यालात का नहीं बताऊंगा, इसी तरीके से फोटोन्स जो है किस तरह से हमारे, जब हमने कहा ना कि जब बताता ना कि आपके रेडियो स्टेशन में जो गाना होता है किस तरह से उसकी आवाज आती है, फिर फोटोन्स की शक्ल में आती है, आपके जबान से निकलती है तो फोटोन्स की शक्ल में जाती है, मैकेनिकल वेव्स होता है उसमें भी ट्रांसफर एक्चुअली फोटोन्स के जरिए होता है, फिर वही फोटोन्स आपके कान में पहुंचता है, फिर आपके दिमाग पहुंचता है, वगैरह वगैरह। इसकी पूरी तफसील इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा, ताकि मैंने इसलिए बताई है, अब मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता था, क्योंकि अगला प्रोग्राम जो मैं करूंगा प्रोसेस ऑफ हार्ट में, उसमें मैंने आपको ये दिखाना था कि माशरा जो है वो एक कलेक्टिव माशरा कैसे बनता है, उसका फोटोन से क्या ताल्लुक है, ये मुझे आपको बताना था। कि अभी तक मैंने पिछला प्रोग्राम जो मैंने किया है प्रोसेस ऑफ हार्ट का, जिसमें मैंने नफ्स को एक्सप्लेन किया है और कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने आपको सेल्फ रिलेटिव कॉन्शियस एक्सप्लेन किया है। ये है पार्ट नंबर 15। पार्ट 12, 13, 14 एंड 15 इसको आपने नहीं सुना, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये आइटम कहीं नहीं मिलेगा, ये किताबें इसमें कहीं नहीं मिलेगी, ये नॉलेज यूनिक बहुत यूनिक है। इसको आपने नहीं मिस करना है, कहीं नहीं मिस करना है, क्योंकि इससे आपके ऊपर राज खुल। मेरा काम, बहुत दिनों से आपसे कहा था ना कि मेरा काम आप लोग को नेक और शरीफ बनाना नहीं है, और सवाब के लिए नहीं है, और जिन्नत के लिए नहीं। आप पर राज खुल जाए, फिर तो आप होंगे और आपकी फ्लाइट होगी, राज खुले, फिर आप अपने बच्चों को बता सकेंगे, सब नई दुनिया बनो, एक नई कायनात बने, एक नई कायनात को देखने का तरीका बने। ये है वो चीज जो आपको नहीं मिलती है, ये बहुत यूनिक, आपको नहीं कर सकते, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको यहां से समझा रहा हूं कि अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आखिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो मैं बार बार कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि ये सम टोटल होता है कॉन्शियसनेस का, वो आपने जिस दिन समझ लिया और आपने रोशनी का समझ लिया, तो फिर आपको पता लगेगा कि आबिद भाई कितनी ताकतवर चीज है, और ये हमारा माशरा कैसे बनता है, हमारे माशरे को और रोशनी से क्या ताल्लुक है। और एक बार माशरा बन जाता है, उस माशरे के अंदर जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, उसकी इंफॉर्मेशन वो कैसे हमको इन्फ्लुएंस करती है, फर्द को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये माशरा और फर्द के दरमियान जो ताल्लुक बनता है ना, रिलेशनशिप बनता है ना, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है ना, वो किस चीज से होता है? वो भी फोटोन से होता है। और वो फोटोन क्या करता है आपके दिमाग के साथ, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो फोटोन आपके फिजिकल ब्रेन में, वही फोटोन आपके फिजिकल ब्रेन में जाके क्या करती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि ये फोटोन वहां से निकला, माशरे से आया, और माशरे से ये फोटोन क्या चीज लेके आया, माशरे के इल्म लेके आया, जबकि माशरे के अंदर एक फर्द ने बोला नहीं, माशरे के माशरे को रोशनी, माशरे से नूर निकला, माशरे कलेक्टिव कॉन्शियस नूर निकला, उस माशरे के इंफॉर्मेशन को लिया इस लाइट ने, फिर वो लाइट मेरे दिमाग के अंदर पेनिट्रेट होता है, मेरे कान के जरिए, मेरे उसके जरिए, आंख के जरिए उसके अंदर घुसता है। घुसने के बाद ये फोटोन मेरे दिमाग के अंदर क्या करता है, मेरे दिमाग के अंदर ये फोटोन क्या करता है, ओह ये सारी बातें ना मतलब आप लोगों को बतानी है इंशाल्लाह ताला। ब्रेन की जो ओरिएंटेशन होती है उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, और ब्रेन के अंदर जिस फोटोस जो चीज जो भी सब ओरिएंटेट करता है, उससे से आपका वर्ल्ड व्यू बनता है।
उसी से आप हकीकत को देखते हैं। आप क्या समझते हैं ऐसे ड्रामा हो जाता है? नहीं जनाब, उसी से वो सब बनता है। फिर आपको मादियत नज़र आती है, डिपेंड करता है कि कौन-सा फ़ोटो किस तरीके से आया तो फिर आप मादियत को देखते हो। ये अमेज़िंग फिनोमेना है। जब मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैंने सारे प्रोग्राम करूँगा, इसका मेन मकसद होता है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे और फिर आप कॉन्शियस हो जाओगे कि किस तरीके से मैं इस ओरिएंटेशन को चेंज कर दूँ। और वहाँ से आप अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करते हो। वहाँ से आपकी दुनिया चेंज होती है। अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करते हो, नई दुनिया अपने लिए बनाते हो। आपके क्या मैंने इस तरह से क्यों समझाया? इसलिए इस तरह से समझाया मैंने कि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उस हादसे को मैंने एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंड किया, कैसे हुआ? फिर मैंने कहा कि हर के साथ तो हादसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि वो क्या चीज़ होती है, तो वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही चीज़ आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। आज तक क्यों ऐसा होता है? शाज़ और नाज़िर चेंज होते हैं लोग, लेकिन हम सबों ने एक से एक तकरीर सुनी है, एक से एक उलमाओं को सुना है, एक से एक तफसीरें सुनी है, लेकिन वही जो थे वही हैं, टस से मस नहीं होते। क्या चीज़ है? जनाब, ये है पर्सनैलिटी का चेंज करना, ये है थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ये वो चीज़ हमारे से निकाल दी गई, ये वो चीज़ नहीं हुई है और ये चीज़ पहले कुछ और थी वर्ल्ड व्यू, अब तो कुछ और वर्ल्ड व्यू बना। ये एक प्रोसेस से हुआ है, जिसको प्री रानासा पीरियड और पोस्ट रानासा पीरियड का प्रोसेस है, उससे हुआ है। इंसान में सलाहियत है अपनी दुनिया बनाने की। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके ज़हन में डाल देना चाहता हूँ, कि आप इधर-उधर भटके ना, ज़हन में डाल देना चाहता हूँ कि उसके लिए जो चीज़ है, ज़िम्मेदार जो चीज़ है ना, वो रोशनी है। आप अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, आपको रोशनी को समझना पड़ेगा। रोशनी का आपके आपकी ज़िंदगी पे क्या असर रसूख आपको समझना पड़ेगा। बात बहुत लंबी है, ये बात बहुत लंबी है, लेकिन मतलब मुझे बार-बार डर लगता है कि आप लोग बोर होके चले जाओगे कि क्या आबिद भाई ने छेड़ दिया है, इसलिए मैं ना थोड़ा-सा बोल के छोड़ देता हूँ। हमारे इतराफ, हम और रोशनी, ये नागुज़ीर हैं, नागुज़ीर हैं ये। ये सारा कुछ हमको जोड़ के जिसने रखा हुआ है हमें, ये रोशनी ने रखा हुआ है। यही रोशनी है जो हमें कनेक्ट करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और यही रोशनी है जो हमें फिज़िकल वर्ल्ड भी एक-दूसरे से कनेक्ट करती है और इसका कनेक्शन का लेवल अमेज़िंग है, कॉन्शसनेस के लेवल पे है। इस चीज़ को मैं इंशाअल्लाह ताला एक दिन में, ये बहुत भारी सब्जेक्ट है, एक दिन में नहीं होगा। मैं आज कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने तौफ़ीक दी, लेके जाऊँगा, लेकिन अब